تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم یوحنا کے پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم چوتھے باب کی 4 تا 9 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ قسط میں ہم نے ایک اہم بات کی تھی جو روحوں کو آزمانے کے متعلق تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا روح گواہی دیتا ہے کہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہی مجسم خدا ہے، اور ہر وہ روح جو اس سے انکار کرے وہ خدا سے نہیں ہے۔ آج ہم اس باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، چوتھے باب کی 4 آیت سے ان آیات کا کیا موضوع ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اسی مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ بائبل مقدس نے ہمیں نشانات دیے تاکہ ہم روحوں کو آزما سکیں، اور ان کا ذکر 1 تا 6 آیات میں ہے، اور 7ویں آیت سے خدا کی محبت کا ایک موضوع شروع ہوتا ہے۔ یہ 3 دائرہ کار ہیں، اور یہ چوتھے باب کی 7ویں آیت سے 5ویں باب کی 3 آیت تک موجود ہے۔ اور میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دائرے میں محبت کے لفظ کا تقریباً 34 مرتبہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس خط کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن خصوصاً اس حصے میں، یعنی چوتھے باب کی 7ویں آیت سے لے کر 5ویں باب کی 3 آیت تک محبت کا لفظ 34 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ اس خط کی 1/3 حصے میں، اور پھر باب کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ دوسروں سے محبت رکھنا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہیں، اس واسطے دنیا کی سی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ 4 آیت ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس پر غالب آئے؟ اس نے جھوٹے نبیوں کا تذکرہ کیا جو کہ گمراہی کے روح کے وسیلے سے اس دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، پر ہم ان پر غالب آئے اس لیے نہیں کہ ایماندار شیطان اور اس کے چیلوں سے زیادہ طاقتور یا پھر دانا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ خدا کے روح کی بدولت جو اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلیسیا اب تک کیسے قائم ہے۔ دشمنی اور شرارت اور ایمانداروں کی کمزوری کے باوجود ہم آج بھی اس کی گواہی ہر روز دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہم نہیں بلکہ وہ ہے جو ہم میں ہے، جو اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ خدا کا روح ہم میں ہے، دنیا میں گمراہی کا روح ہے جو تب تک متحرک ہے جب تک مخالف مسیح نہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے دنیا میں کلیسیا اب تک قائم ہے، کیونکہ کلیسیا میں موجود خدا کا روح دنیا میں موجود اس روح سے بڑا ہے۔ بالکل، بے شک جغرافیائی لحاظ سے ہم ایسی جگہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کوئی گواہی دینے والا نہ تھا، یعنی ایک وقت ایشیا کوچک میں کوئی گواہی نہیں تھی۔ آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ کلیسیا کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے، پر یہ کلیسیا ساری دنیا سے نہیں، جب تک کہ مسیح کلیسیا کو لینے نہ آ جائے۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا، اگر وہ توبہ نہ کریں تو اپنی جگہ سے ہٹائی جائے گی۔ اگر کلیسیا توبہ نہ کرے تو اس کا یہ مقام اور رتبہ نہ رہے گا۔ کیا دنیا میں سے کلیسیا ختم ہوگی؟ مسیح نے فرمایا، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔
लेकिन हम बेवफा ना हो जाएं, क्योंकि हमारी बेवफाई के नतीजे में हमसे ये मुकाम ले लिया जाएगा। अगर दुश्मन इस धोखे में है कि किसी जगह पर मसीही मौजूद है और वक्त के साथ साथ इसका असर जाता रहे, तो वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, क्योंकि उसका मकसद जमीन पर से मसीही मौजूदगी को खत्म करना है। मुझे ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि कलीसिया में खुदा का रूह मौजूद है, इसलिए ये मसीह के आने तक कायम है। बिल्कुल, यसाया नबी ने इसको बयान किया। 6 बाब में उसको बूतम और बलूत की मानिंद कहा। जी, बावजूद ये काटा जाए तो भी उनका डंग बचा रहता है, सो उसका डंग मुकद्दस तुकम होगा। एक वक्त था कि अमेरिका में 100% लोग मसीही होते थे, और मैं कहूँगा कि अब वो लोग कहाँ गए? क्या मसीहत वहाँ से खत्म हुई? बल्कि हम तो ये पढ़ते हैं कि खुदा के वफादार लोग जमीन के इस मखसूस हिस्से में रहते हैं और खिदमत करते हैं। ठीक है। जो हम में है उससे बड़ा है। जो दुनिया में है, खुदा का रूह दुनिया में मौजूद गुमराही के रूह से बड़ा है। वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। भाई यूसुफ 5वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। दुनिया झूठे उस्तादों की क्यों सुनती है? वो खुदा के कलाम को कबूल क्यों नहीं करती? इस पर आपकी क्या राय है? लिखा है कि वो दुनिया से हैं, उनके असूल और उनकी राहें और उनकी जुबान एक सी जुबान है, और इसीलिए दुनिया उनकी सुनती है। और इसके बाद लिखा है, हम खुदा के हैं और जो खुदा को जानता है हमारी सुनता है। ये आजमाने के 3 तरीकों में से एक तरीका है। पहले, हम रसूलों को सुने, क्योंकि ये सच में बहुत ही अहम है, और मौजूदा दौर में मसीह की बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और लोग रसूलों की बातों पर ध्यान नहीं देते। पर पतरस रसूल ने फरमाया, जो खुदा से है वो हमारी सुनता है। सही। हम खुदा से हैं। जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। जो खुदा से नहीं, वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। ये इन दोनों का फर्क बयान है। उसने पहले इस रूह को मुखालफे मसीह का रूह कहा और यहाँ इसको गुमराही का रूह कहा। हमें हक और गुमराही के बारे में बताइए। देखें, शैतान कभी भी हक को बयान नहीं करता, क्योंकि उसमें रास्ती बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाक रूह को सदाकत का रूह कहते हैं। जो भी खुदा का कलाम सुनाए वो खुदा की तरफ से है और हक बयान करता है। पर शैतान में कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करता है। और मैं अपने नाजरीन को गुमराह करने के 3 तरीकों के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि रूहे हक और गुमराही की रूह में फ़र्क कर सकें। पहला, मसीह की तरफ उनका बर्ताव कैसा है। जी। इकरार करें वो मुजस्सम खुदा है। दूसरा, ये भी देखें कि दुनिया की तरफ उनका रवैया दरअसल कैसा है। और फिर तीसरा, कि मसीह के रसूलों की तरफ उनका रवैया कैसा है। क्या वो उन रसूलों की बात को सुनते हैं, या फिर वो उनकी बात नहीं सुनते, या फिर बात कुछ ऐसी है कि वो उनकी बातों को थोड़ी सी भी अहमियत नहीं देते। ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि झूठे उस्ताद अपने गिर्द पैरोकारों को इकट्ठा करते हैं। आजकल बिद्दात और गलत तालीम मसीहत की हकीकी तालीम से ज्यादा जल्दी फैल रही है, क्योंकि उनमें जिस्मानी ख्वाहिशात मौजूद हैं। अफसोस कि लोग इन तरीकों में फंस जाते हैं। वो इन ख्वाहिशात के जरिए लोगों का रुझान अपनी तरफ करते हैं, पर हम इससे खबरदार रहें ताकि इनका शिकार ना हो जाएं। इनकी राहें फानी हैं, इसमें खुदा की बरकत नहीं। हम होशियार रहें और फक्त खुदा के कलाम की मुनादी करें।
छठी आयत है, हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। ये क्यों नहीं कहा कि जो खुदा को जानता है खुदा को सुनता है? जी भाई यूसुफ। देखें, ये बहुत ही अहम नुक्ता है। यहाँ पर हमसे मुराद दरअसल रसूल हैं। हम खुदा से हैं और खुदा ने हमें भेजा है और हम खुदावन यीशु मसीह के रसूल हैं। जो खुदा को जानते हैं हमारी सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही था जैसे अब मौजूद है कि लोग रसूलों की बातों को अहमियत नहीं रसूलों देते की। थे। हम मसीह की बातों पर गौर करें, क्योंकि वो बातें रसूलों के वसीले से हम तक पहुंची हैं, तो लोग अपनी पसंद की बातों को कबूल करते और नापसंद आने वाली बातों को रद्द करते हैं। वो खुद ही फैसला करते हैं कि क्या कबूल करें, क्या रद्द करें। और मैं कहूँगा कि ये मुखालफे मसीह की रूह की तहरीक का नतीजा है सही। कि खुदा के कलाम में से कुछ बातों को कबूल करें और कुछ को रद्द कर दें कि वो रसूलों के अल्फाज नहीं। पर मैं कहूँगा कि जो खुदा को जानता है वो ठीक है। रसूलों की सुनता है, क्योंकि इन्हीं रसूलों के वसीले से खुदा का कलाम हम तक पहुँचा है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, क्योंकि दुनिया में ऐसी तालीम भी है कि ये रसूलों के अपने ख्यालात बिल्कुल। हैं। अनाजील या खतूत का नहीं, बल्कि हर सहीफे का हम अपनी मर्जी से इसको लिखा अलग है। नहीं कर सकते। जी, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। भाई यूसुफ, इन अल्फाज के क्या मानी है हमारी सुनते हैं? आप हमें बताइए कि बाइबल मुकद्दस इसके मुतालिक क्या फरमाती है। कलाम मुकद्दस में सुनने को ताबेदारी कहते हैं। मसलन फरमा, तेरा बंदा सुनता है, पर इससे मुराद ये नहीं कि उसके कान खुले हैं। खुदावंद तूने जो कहना है फरमा, पर मैं अपनी मर्जी करूंगा। क्या वो सुनता है? तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादिम जी। की बातें सुनता है? और जब हम खुदावंद की बातें माने तो इसके मानी है कि हम उसकी सुनते हैं, क्योंकि जो खुदा को जानता है वो उसको मानता है, और जो खुदा को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। और ये मसीहत में उनको आजमाने का तीसरा तरीका है। ठीक है भाई यूसुफ, ये गुमराही नहायत खतरनाक है, और जब ये मसीही दायरा कार में शामिल हो तो खुदा के फर्जंदों के लिए मुश्किल का बायस बनती है। खुदा ने इतनी जल्द रसूलों के अयाम में ही गुमराही का असर क्यों होने दिया? मतलब ये नहायत अफसोसनाक है, पर इससे भी बुरा ये है कि इसकी जड़ें कदीम से मौजूद है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? दरहकीकत मैं यहाँ पर कहूँगा कि इसकी इजाज़त देने में भी खुदा की मसलहत शामिल है। जब तक इल्हाम के ये 3 बर्तन जमीन पर मौजूद यानी हैं, रसूल। जी रसूल, ताकि हम इस जहर का तोड़ बना सकें। और इसीलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उनके वक्त में ये तालीम मौजूद थी और रसूलों ने हमें अपनी जिंदगी के अयाम में ही इसका जवाब भी बख्शा। पौलुस रसूल और यूहन्ना रसूल और पतरस रसूल की तहरीर में भी हम इनको पढ़ सकते हैं, और बाइबल मुकद्दस में मौजूद गुमराही का जवाब भी मिल सकता है। तसव्वुर करें कि अगर ये सब उनके अयाम में ना होता और हमारे पास इनके जवाब ना होते तो हम फिर क्या करते? हम मुश्किल में होते। पर खुदा का शुक्र हो कि उसने पहले ही इस मसले पर गौर किया, सो हमें लिखा और ये बिदअत फैलती रही। सही। और रसूलों ने इन सब के जवाब दिए। ये हमें बताता है कि किसी चीज का कदीम से ताल्लुक होना इसकी हकीकत का सबूत बिल्कुल। नहीं, क्योंकि 1000 साल से भी ज्यादा पुराने झूठ मौजूद हैं। कदीम पुराने ख्यालात दुरुस्त होना जरूरी नहीं। हम 7वीं आयत पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं 6ठी आयत पर आपकी राय चाहता हूं। हक की रूह और गुमराही की रूह क्या है? इसके मुतालिक क्या कहेंगे? गुमराही की रूह दुनिया में मौजूद है। हक की रूह को ये क्यों कहते हैं? ये हक की तरफ हमारी रहनुमाई करती है, या ये हक का सरचश्मा है? इसकी खासियत या काम हक के हैं? हक का लफ्ज रूहुल कुद्स के कामों को कैसे बयान करता है? हक की रूह हमें हक देती है और रूहुल कुद्स हमें हक का बयान करता है। ये सदाकत की रूह है और बाइबल मुकद्दस में इसके सिवा सब गुमराह हैं, और यही फक्त सच्चाई है। और इसके सिवा सब कुछ गुमराही है और सिर्फ मसीह ही हक है। और मैं ये भी कहूँगा कि रूहुल कुद्स हमें हक का यानी कि हमें मसीह का बनाता है, वो भी जो दुनिया में मौजूद है। भाई यूसुफ, मैं इसकी तफसीलात में जाना चाहूँगा।
हम अक्सर औकात गैर फितरी अमल को देखते हैं। कुछ लोग कलीसिया में मौजज़ात करके कहते हैं कि ये रूहुल कुद्स की बदौलत है। कुछ लोग चंद अल्फाज बोलने के बाद इसको मुकाशवा का नाम देते हैं कि ये रूहुल कुद्स का काम है, या फिर कुछ ऐसी बातें कहकर इनको किसी शख्स या कौम के लिए नबूवत का नाम देते हैं कि ये रूहुल कुद्स का काम है। हम इनको कैसे जान सकते हैं कि ये मुकाशवात और हक के काम रूह से हैं या फिर नहीं है? क्या मुनात की जुबान से गलती नहीं हो सकती? मसीह से उनका बर्ताव, क्या वो मसीह के नाम को जलाल देते हैं और उसके मुतल्लिक सच बताते हैं? और उनका अंदाज कैसा है? दुनियावी है तो क्या दुनिया उनकी सुनती है? क्या ये नए अहदनामे में लिखा है? क्या ये मुकाशवा के मुताबिक है या नहीं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि रसूल खुदा की तरफ से भेजे गए हैं। जो उनकी सुनता है वो खुदा से है। इसीलिए हम सब चीजों को उस मेयार से तोलें और उसी मेयार से जांचें कि क्या ये नए अहदनामे में खुदा के कलाम से मुताकबत रखता है या नहीं। ठीक है। फिर लिखा है, ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है खुदा की तरफ से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। उसने इन लोगों को अजीजो कहा। फिर कभी ए भाइयों या बच्चों के लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ अजीजों का लफ्ज इस्तेमाल किया। हमें इसके मुतालिक बयान कीजिए। इसमें रूहुल कुद्स की मसलहत मौजूद है। वो हमें मोहब्बत की नसीहत करता है और हमें याद दिलाता है कि हम खुदा के अजीज हैं, इसलिए एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें। मसीहत में ये नुमाया है कि हम खुदा की मोहब्बत से महजूज होते हैं। इस बाब में दोबारा इसका तस्करा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है, और ये जानना हमारे लिए शर्फ की बात है कि खुदा मोहब्बत है, और इसीलिए हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। उसने कहा, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और हमें भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। और उसने हमें हमारा फर्ज याद दिलाया, क्योंकि हमें खुदा को जानने का इस्तेकाक हासिल है। जी हाँ, लिखा है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। मोहब्बत रखना खुदा से पैदा होने की अलामत है। सही। इस खत में और भी हवाला है जो हमें खुदा से पैदा होने के मुतालिक बताए। खुदा के फर्जंद क्या करते हैं? ऐसे कम से कम 5 निशानात या सबूत मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि हम खुदा से पैदा हुए हैं, और यूहन्ना रसूल ने उनमें से एक पर जोर दिया, यानी मोहब्बत पहला सबूत है, जो दूसरे बाब की 3री आयत में मिलता है। और अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। फर्माबरदारी इसका सबूत है। और रास्तबाजी सिर्फ तब ना हो जब हमें मौका मिले, ये हमारा फैसला होता है। सही। दूसरे बाब की 29वीं आयत है कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है, और जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। अगर वो गुनाह में गिर जाए तो वो उस पर तवज्जो देता है, और अगर वो गुनाह में गिर जाए तो वो उसी गुनाह में ही रहता है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि ये वाज़े सबूत है कि वो दर हकीकत खुदा को नहीं जानता और ना ही वो उसमें रहता है। और इसी बाब में लिखा है, हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। आपने जो आयत अभी पढ़ी, इसमें भी यही बयान है, और इस आयत से भी ये वाज़े होता है कि ईमानदारों से मोहब्बत रखना इस बात का सबूत है कि, और 5वें बाब में दुनिया पर गालिब आना खुदा से पैदा होने का सबूत है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। आठवीं आयत है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बहुत से लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते, लेकिन वो अपने ख़ानदान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। और फिर यहाँ किस मोहब्बत की बात हुई? यूहन्ना रसूल ने कौन सी मोहब्बत की बात की? उसने मनफी तौर पर उससे कहा कि जो मोहब्बत नहीं रखता खुदा को नहीं जानता।
देखें, इंसानों में फितरी मोहब्बत मौजूद है और ये जानवरों में भी मौजूद है, बल्कि मैं कहूँगा कि सब जानदारों में मौजूद है। उनके अंदर अपनी औलाद के लिए एक जज्बा और मोहब्बत है। यहाँ तक कि जानवर मोहब्बत रखने में इंसानों से भी ज़्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ बरादराना मोहब्बत की बात नहीं हुई जो कि दुनिया में अक्सर आम लोगों में मौजूद है। यहाँ पर रसूलों ने अगापे मोहब्बत की बात की, यानी उनसे मोहब्बत रखना जो इस लायक नहीं है। दुश्मनों से अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, और जो मोहब्बत नहीं रखता ये इस बात का सबूत है कि वो खुदा को नहीं जानता। जी हाँ, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। अगापे मोहब्बत नहीं अगापे है। मोहब्बत नहीं है। वो बरादराना मोहब्बत ना रखकर अपने खानदान की देखभाल करता है। ये इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर जानवर इंसान से बेहतर होते हैं, और ये जानवर मैं कहूँगा कि इंसान से भी बढ़कर मोहब्बत रखते हैं। वो इंसान से बेहतर होते हैं। लेकिन मसीही तालीम यानी खुदा की तरफ से जिंदगी पाना, मसीह पर ईमान लाने के सबब से नई जिंदगी पाना, मसीहत हमें ये सिखाती है और इसी से हमें इलाही मोहब्बत पैदा होती है। सही। अगर मुझे अपने घराने और अपने खानदान से बहुत प्यार है और मैं अपने भाइयों से मोहब्बत रखता हूँ, तो यही मोहब्बत दुश्मनों से भी होनी चाहिए। अगर मैं किसी को अपने दुश्मन से मोहब्बत करते देखूं, तो ये जान सकता हूं कि वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा से मोहब्बत इसमें मौजूद है, और जो कोई ऐसा नहीं करता वो खुदा से पैदा नहीं हुआ। हम सिर्फ उनसे मोहब्बत ना रखें जिनके ख्यालात और जिनकी राय हमारे साथ मिलती हैं, बल्कि खुदा के फर्जंदों से भी, क्योंकि उनका सरचश्मा हमारा खुदा है। हम जी। उनसे मोहब्बत रखें। मैंने किसी को एक मसीही तालीम पर तनकीद करते हुए सुना, ये कैसा मजहब है जो आपको दुश्मनों से मोहब्बत रखने की तालीम देता है? क्या दुनिया में कोई मजहब ऐसी तालीम देता है कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा उसकी तरफ फेर दो? ये जंगल का रवाज है। जो आपका हक लेना चाहे ले लेगा और जो आपको कुचलना चाहे कुचल देगा। आपको बहादुर और मजबूत होना है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। दुनिया में ताकत की जुबान चलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? यकीनन ये मजहब नहीं है। मजहब हकीकी मसीहत से बहुत दूर है। मसीहत मसीह की पहचान है और फिर उसके असूलों पर चलना है। जैसे मसीह ने जिंदगी गुजारी, ये इंसानियत के बेहतरीन असूल हैं जो हम नहीं जानते थे। और यहाँ पर ताकत के हवाले से मैं कहूँगा, हम अकेले नहीं हैं कि कोई हमें कुचल दे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम सही। करता है। जब कोई अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अगर कोई किसी को थप्पड़ मारे और वो भी वापस उसको थप्पड़ मारे, तो ये दुनिया जंगल बन जाएगी। मतलब कि अगर कोई जैसा करे उसके साथ दूसरा वैसा ही करे, तो बल्कि मैं कहूँगा कि इंसान के दिल में जो आए वही वो करे, तो फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ ताकतवर जिंदा रहेगा जैसा जंगल में होता है। पर हम अपना मामला खुदा पर छोड़ते हैं। खुदा उन सब मजलूमों खुदा के के लिए हजूर। सदाकत और अदल के सही। काम करता है। ठीक कहा? बिल्कुल। ठीक है। 9वीं आयत है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। उसने मोहब्बत का खूबसूरत इजहार किया है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते को दुनिया में भेज दिया। इसके मुतालिक क्या कहेंगे? हमने पहले भी कहा कि यूहन्ना रसूल ने इसमें मोहब्बत के 3 दायरा-कार का वाज़ेह तज़किरा किया है: माजी, हाल और मुस्तकबिल। सही। माजी में खुदा की मोहब्बत हमारे लिए, और फिर हाल में हमारे अंदर, जी। मुस्तकबिल में खुदा की मोहब्बत हमारे साथ। अभी हमने माजी की मोहब्बत की बात की। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई, और खुदा ने माजी में अपनी मोहब्बत का कुछ यूं इजहार किया। जी। और ये मैं कहूँगा कि किस तरह से जाहिर हुई कि उसने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा कि वो हम सब के सबब से जिंदा रहे, और उसने खुदा की कामिल मोहब्बत का वाज़ेह तौर पर बयान किया। और मैं कहूँगा कि ये हम जैसे कमज़ोरों में जाहिर नहीं होती, बल्कि ये खुदा की कामिल मोहब्बत है जो कि उसने खुद जाहिर की। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यहाँ यीशु को खुदा का इकलौता लिखा है जो कि कुल 5 मरतबा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। जी। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील में लिखा गया, और कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने हमारे उसका दरमियान ऐसा रहा। जलाल देखा जैसे कि जैसे बाप बाप के के इकलौते का। इकलौते का जलाल,
لکھا ہے کسی نے باپ کو نہیں دیکھا، اکلوتا خدا کا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اکلوتا بیٹا۔ ظاہر کیا، جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا، اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اپنا اکلوتا اکلوتا بیٹا۔ بیٹا۔ اور 17ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے نجات پائے۔ اور یہ یہاں 5 مرتبہ آیا ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ یہ خدا کا شاندار مقصد ہے، اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں، اور مسیح نے فرمایا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آپ نے بتایا کہ مسیح کو 5 مرتبہ خدا کا بیٹا یعنی اکلوتا بیٹا کہا گیا ہے۔ صحیح بہت سے لوگوں کو لفظ بیٹے پر اعتراض ہوتا ہے۔ جی، مسیحت پر بہت سے حملے ہوتے ہیں۔ خدا کا بیٹا یہ بہت مشکل خطاب ہے۔ مسیحی ایمان رکھنے والے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ خدا کے بیٹے کے کیا معنی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے مقدسہ مریم سے شادی کی اور مسیح اس سے پیدا ہوا، سو ہم اس کو خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ ایسی باتیں کون کہتا ہے، وہ احمق اور نادان ہیں۔ کیا بیٹے سے مراد کیا صرف وہی اولاد ہو سکتی ہے جو کہ شادی کے بعد پیدا ہو؟ پر ایسے بہت سے القابات ہیں، جیسے کہ بنت ہوا اور جیسے بنت شفا۔ تو کیا آپ نے ایسے القابات کبھی نہیں سنے، یا پھر یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے نئی ہیں، یا پھر وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں جانتے تو یہ برا ہے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو پھر بہت بری بات ہے۔ خدا روح ہے، صحیح۔ تو خدا جو روح ہے شادی کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد پیدا ہو؟ یقیناً یہ غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کے معنی صرف اور صرف روحانی ہیں، یعنی ازل سے ہی بیٹا موجود ہے۔ یہ مریم کے ساتھ شادی ہونے سے پیدا نہیں ہوا، نہیں۔ میں کہوں گا کہ مسیح خدا ہے اور وہ ابدی بیٹا ہے۔ یہ دنیاوی تعلق سے ہے، لیکن وہ انسانی میل ملاپ سے پہلے ہی موجود تھا، اور جیسے کہ پاکستان کے مالک نے کہا کہ میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید وہ اس کا لحاظ کریں، پر میں یہاں پر کہوں گا کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو لفظ بیٹا مکاشفہ اور اس کا اظہار ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ سو اس میں انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شادی کا معاملہ یا دنیاوی چیزوں کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں، لیکن خدا کے بیٹے کے معنی وہ ہیں جو خدا کو ظاہر کرے اور ازل سے ابد تک خدا کے برابر ہے۔ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ آپ جس کے خلاف بولتے ہیں وہ منصف ہے۔ ایک دن آپ کو اپنے ہر کہے الفاظ کا ہر حالت میں حساب دینا ہوگا، اسی لیے آپ جو کہتے ہیں احتیاط سے کہیں۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا بہت خدا شکریہ کو برکت دے۔ اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، خدا نے محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھایا ہے، سو اس کی محبت کو قبول کیجیے، مکاشفہ کو قبول کیجیے، تاکہ خدا کی محبت کو پائیں اور ابدی ہلاکت سے بچ سکیں اور ابدی خوشی اور آرام میں داخل ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ